Hello guys, now we will start question number 3, exercise 8.1 for class 10th. Our question is, if sin A equals to 3 divided by 4, calculate cos A and tan A. Here, sin A equals to 3 divided by 4. We have to find cos A and tan A. Now, तो cos A और tan A निकालने से पहले हमने देखना है इस राइट ट्रायंगल में तीन साइड्स। पहले हमारे पास तीन साइड्स होने चाहिए, तो इसके बाद हम निकाल सकते हैं रेशो। हाँ, now consider the right triangle ABC right angled at B. तो हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है ABC right angled at B. We know that AC will be hypotenuse here because AC is side opposite to right angle. इसके बाद हमारे पास दो एक्यूट एंगल अब है, एंगल A और एंगल C. तो हमने cos A और cos tan A निकालना है, तो हम पहले इस राइट ट्रायंगल के तीनों साइड्स मेंशन करेंगे। Here given that it is given that sin A is equal to 3 divided by 4. तो सवाल में खुद ही गिवन है कि sin A equals to 3 divided by 4. This implies that अगर हम इस राइट ट्रायंगल को देखेंगे, इसमें sin A की बात करेंगे हम, एंगल A, इसमें देखेंगे हम sin A. We know that P B P H H B, sin cos tan cosec sec cot. तो साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. अब हमने फैसला करना परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेन्यूज कहाँ है। अगर हम एंगल ए की बात करेंगे तो साइड अपोजिट टू एंगल विल बी परपेंडिकुलर, साइड एडजेसेंट टू एंगल विल बी बेस. नाउ हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज साइड अपोजिट टू राइट एंगल. इन राइट ट्रायंगल ABC right angled at B, here sin A equals to perpendicular divided by hypotenuse, perpendicular BC divided by hypotenuse AC will be equal to 3 divided by 4 will be equal to K, where K is positive integer. K is positive integer. हम लिख सकते हैं K is positive integer. So this implies that BC will be equal to 3K. BC will be equal to 3K and AC will be equal to 4K. अब हमारे पास BC है 3K, AC है 4K. हाँ, 4K. यह हमारे पास अब दो साइड है. BC will be equals to 3K and AC will be equals to 4K. Now, by using Pythagoras theorem, we have to find AB. First of all, by using Pythagoras theorem, अब हम देखेंगे AB. पहले इस ट्रायंगल का तीसरा साइड AB. We know that Pythagoras theorem, hypotenuse square यानी AC square will be equals to base square AB square plus perpendicular square BC square, और implies that AC की जगह लिखेंगे हम 4K square will be equal to AB हमने निकालना है AB square प्लस BC की जगह हम लिखेंगे 3K square. अब इसको हल करेंगे, implies that 4K square 4 का भी है और K का भी है. 4 4s are 16, K square अपनी जगह 16, K square will be equals to AB को अपनी जगह रखेंगे AB square प्लस यहाँ स्क्वायर 3 का भी है, K का भी है, 3 3s are 9, K square अपनी जगह. This implies that 16K square अपनी जगह रखेंगे हम और 9K square यहाँ प्लस है, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, माइनस 9K square will be equals to AB square. This implies that 16K square में से 9K square अगर घटाएंगे तो वहाँ 7K square will be equals to AB square, और implies that AB का स्क्वायर हम ट्रांसपोज करेंगे तो AB will be equals to स्क्वायर यहाँ लेंगे अंडर रूट 7K square. तो K के ऊपर स्क्वायर है, 7 के ऊपर नहीं है, तो स्क्वायर यहाँ रूट विल कैंसल, K बाहर जाएगा. हम लिख सकते हैं K इंटू अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7K.
तो अब हमारे पास ए बी है, हम लिखेंगे √7k, जैसे यहाँ 3k 4k √7k। अब हमारे पास तीन साइड्स है, अब हम आराम से निकाल सकते हैं cos A एंड tan A। नाउ in right triangle ABC, right angle at B, here cos A will be equals to base divided by hypotenuse। A की बात है तो base adjacent side। Now cos A will be equal to here AB, यानी base divided by side adjacent to angle A, यानी AB divided by hypotenuse AC, this is equal to cos A लिखे यहाँ, AB की जगह हम लिखेंगे आप √7k डिवाइड बाई AC की जगह हम लिखेंगे 4k, k और k कट भी हो सकता है, √7 डिवाइड बाई 4। तो we know that cos A equals to √7 divided by 4 here। and अब हमने देखना है tan A we know that tan theta equals to side opposite to angle theta divided by side adjacent to angle theta, यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, जिस एंगल की बात करेंगे उसका अपोजिट साइड। बेस कौन सा साइड है, जिस एंगल की बात करेंगे उसका एडजेसेंट साइड बेस। नाउ वी नो दैट हियर tan A इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी BC डिवाइड बाय बेस यानी AB साइड अपोजिट टू एंगल A डिवाइड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल A इज इक्वल टू BC की जगह लिखे 3k डिवाइड बाई AC की जगह लिखे हम AC की जगह हम लिखेंगे 4AB यहाँ है। हाँ, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस AB, दिस इंप्लाइज दैट 3k डिवाइड बाई √7k √7 into k, k और k कट, दिस इंप्लाइज दैट 3 डिवाइड बाई √7। तो यह हमारे पास है अब cos A equals to √7 divided by 4, tan A equals to 3 divided by √7। तो ये हमने निकालना था cos A और tan A इस राइट ट्रायंगल में। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इंशाल्लाह आप करेंगे।